ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಡೀಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮತ್ತು ಡೀನ್ ಆಗಿ ಅವರು ನಿವೃತ್ತರು. UGCಯ ಸದಸ್ಯರು, ಹಾಗೆಯೇ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇದರ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಕಮಿಟಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರದ ಮಾನ್ಯ ಮಹಾನಗರ ಸಂಘ ಚಾಲಕರಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮುಕುಂದ ಅವರು ಸಹ ಸರಕಾರ್ಯವಾಹರು, ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜಾಯಿಂಟ್ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವರು, ಪ್ರಚಾರಕರು. ಅವರ ಬಲಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಅವರು KIADBಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ನಿವೃತ್ತರವರು. ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಮಧ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ 4 ರಾಜ್ಯಗಳ ಒಳಗೊಂಡಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅದರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯವಾಹರು, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವಂತಹ 3 ಹಿರಿಯ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರಿಚಯ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಶ್ರೀಯುತ ಏರ್ ಮಾರ್ಷಲ್ SP ಸಿಂಗ್ ಅವರು, ರಿಟೈರ್ಡ್, 3 ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಶಿಲ್ಲಾಂಗ್ ಮತ್ತು ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ವಾಯುಸೇನಾ ಮೆಡಲ್ 1999ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ವಾಯುಸೇನಾ ಮೆಡಲ್, ಹಾಗೆಯೇ 2006ರಲ್ಲಿ ಅತಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೇವಾ ಮೆಡಲ್ ಪುರಸ್ಕೃತರು, 2013ರಲ್ಲಿ ಪರಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೇವಾ ಮೆಡಲ್ ಪುರಸ್ಕೃತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಏರ್ ವೈಸ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ವಿಕಾಸ್ ಕೆ ಯಜುರ್ವೇದಿ ಬಲಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ನಿವೃತ್ತರು. 38 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರು ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ ಫೋರ್ಸಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2002ರಲ್ಲಿ ವಾಯುಸೇನಾ ಮೆಡಲ್ ಪುರಸ್ಕೃತರು, 2006ರಲ್ಲಿ ಅತಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೇವಾ ಮೆಡಲ್ ಪುರಸ್ಕೃತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ VM ಪಾಟೀಲ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ನಿವೃತ್ತರವರನ್ನು. 1962ರ ಚೀನಾ ಯುದ್ಧ ಹಾಗೆಯೇ 65ರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯುದ್ಧ ಎರಡೂ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂಥವರು. ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಂಬಸಿಸ್ ಆಫ್ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ, ಲಾವೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ, ಹಾಗೆಯೇ ಕಮಾಂಡರ್ ಆಫ್ UN ಮಿಲಿಟರಿ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇರಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇರಾನ್. ಇಷ್ಟು ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿದ್ವಾನ್ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಶ್ರೀಯುತ ವಿದ್ವಾನ್ ಅನಂತ ಕೃಷ್ಣ ಶರ್ಮಾ ಅವರು, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆದ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಮೃದಂಗ ವಿದ್ವಾನ್ ಅವರು, ಕಂಪೋಸರ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಕಷನಿಸ್ಟ್ ಅವರು. ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳವರಿಗೆ ಲಯಕಲಾ ಪ್ರತಿಭಾಮಣಿ, ಗಾನಕಲಾಶ್ರೀ, ಹಾಗೆಯೇ ಕಂಚಿ ಮಠದ ಆಸ್ಥಾನ ವಿದ್ವಾನಾಗಿಯೂ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತೀಯ ಅಂದರೆ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸಂಘಟನೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತಿ. ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತೀಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಅನಂತಕೃಷ್ಣ ಶರ್ಮಾ ಅವರು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು, ಉಳಿದಂತಹ ಸಂಗೀತ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಂಥ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಹನೀಯರಿಗೂ ನಾನು ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸುಮಾರು 88 ವರ್ಷದ ಯುವಕರು, ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕರು, ಸುಗಮ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೇರು ಪರ್ವತ. ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿ. He is 88 years, a great singer. Even now, he is very active. It's been a great honor that he has come here. Gartikare Raghavendra is his name, but we call him as Gartikare or Ragana. Tirumale Srinivas, one of the fine Carnatic classical singer, composer, and a very well-known guru. A great friend of mine. That's I am very proud. The disciple of my father, H.K. Venkatram, my school time friend. Not school time friend, what we call Jigri Dost. He's one of the topmost violinist of our country, and he's a senior director for architecture and research in Intel. And the foremost Karnataka vocal singer, professor Dhanakala Bhushana Nagamani Srinath, ಅವರು ಕೂಡ ಖ್ಯಾತ ವಾಗ್ಯಕಾರ್ತಿ ಅಲ್ಲದೆ ತುಂಬ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಗುರು. ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ.
ನಂತರದಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೈನೆಸ್ಟ್ ವೀಣಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಗಾನಕಲಾಭೂಷಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಮಾ ಸುರೇಂದ್ರ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಅವರು she has a doctorate in Veena technique and also she has a special Veena called Tarangini, which is very friendly for travel. Next ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುಸ್ತಕಂ ರಮಾ ಅವರು, as I said, ನಾಗಮಣಿ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವರ senior student, a very good singer, composer and organizer. ಇವ್ರು 3 ಜನನೂ they are all organizers. ನಾನು ಅದು ಹೇಳೋದು ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಕಮಿಂಗ್ ರಮಾಜಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸುಚೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಾಂತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಟರು, ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಬರಹಗಾರರು, ವಾಗ್ಮಿಗಳು. ರವೀಂದ್ರ ಕಾಟೋಟಿ ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಅಂದರೆ ರವೀಂದ್ರ ಕಾಟೋಟಿ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ finest exponent in harmonium and a good guru. Once again, Nagaraj Havaldar ji, my lineage of Bhimsen Joshi, is a student of Madhav Gudi and a very good writer also. He is a very good singer, guru, and he is a very good writer. He has written a book on Bhimsen Joshi also. Pandit Ravindra Yagal ji, one of the finest tabla players of our country, a student of ಶೇಷಗಿರಿ ಹಾನ್ಗಲ್, ಗಂಗೂಬಾಯಿ ಹಾನ್ಗಲ್ಸ್ ಬ್ರದರ್ ಅವರು, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುರು ಕೂಡ ಅವರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಜಯಶ್ರೀ, ಆಡು ಮುಟ್ಟದ ಸೊಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅನ್ನಂಗೆ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಗಾಯಕಿ. ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಹತ್ರ. ನಿರ್ದೇಶಕಿ and a great actor and director. She also comes from a great lineage of Gubbi Veeranna. Gubbi Veeranna ಅವರ ಕಂಪನಿಲಿ ಎಷ್ಟೋ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಪಳಗಿದಂಥವ್ರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬಿ ಕೆ ಸುಮಿತ್ರಾರವರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲಾಶ್ರೀ ಬಿ ಕೆ ಸುಮಿತ್ರಾ ಅವರು ಕೂಡ ಶಿ ಈಸ್ 82 years, ಸ್ಟಿಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್, singing and great guru also. She also teaches a lot and she's been singing from last more than 50 years. Thank you, madam. And our country's foremost flautist, Pandit Praveen Godkindi. He's everything. I don't think he needs explanation. And I think Parakruji, no need introduction. A great Sanchalak Guru from last 60 years. And Adikina Hechige our ಬಗ್ಗೆ is a very good friend of mine. Geeta Ramanand ಅವರು, she's a great Veena player and she was in a AR working as a program executive. And I think I finished all the seniors. There are some other musicians also. It takes time, so I will stop here. Please don't mistake me. Thank you. हमारा भी हम सब लोगों का संगम सौभाग्य है कि इस कार्यक्रम के निमित्त आप सब लोगों को एक साथ हम देख पा रहे हैं, क्योंकि संगीत ये विषय ऐसा है भारत में, केवल मनोरंजन का नहीं है, अपने संस्कृति का वाहक ऐसा वो है, और इसलिए उसकी परंपरा तो यानी वेदों के सामगायन से निकलती है। तो कार्यक्रम के बारे में मैं थोड़ा बताता हूँ। ऐसे कार्यक्रम को अंग्रेजी में बैंड स्टैंड ऐसा कहते हैं, परंतु आज जो ये बैंड स्टैंड होगा, इन्हें संगम में बैंड को घोष कहते हैं।
उसकी विशेषता ये है कि ये रण संगीत है, जैसे बैंड का, मिलिट्री बैंड का होता है, लेकिन ये भारतीय रागों पर और तालों पर आधारित है। संघ शुरू हुआ तो संघ में शारीरिक कार्यक्रम थे और परेड वगैरह भी हम लोग उस समय करते थे। तो ब्रिटिश राज था, उनको भारत से निकाल देना सबके मन की इच्छा थी। तो जो जो उनके पास है वो हमारे पास भी होना चाहिए। तो अपने परंपरागत शारीरिक कार्यक्रम तो थे ही, लेकिन उनके जैसा परेड भी करना, ड्रिल भी करना, तो उनके जैसा अपने बैंड भी चाहिए, ऐसा स्वयंसेवकों ने सोचा। और लगभग 1926-28 से 28 के दरमियान एक बैंड शुरू किया। वो पहला बैंड क्या था, संघ का भी प्रारंभ था, तो पुराना एक बिगुल कहीं से मिल गया, वो खरीद लिया, एक बास ड्रम खरीद लिया, उस पर ही पहला पथ संचलन निकला हमारा, ऐसा वो बैंड था। लेकिन धीरे धीरे उसको अच्छा बनाना तो बहुत परिश्रम पूर्वक स्वयंसेवकों ने सीखा। नागपुर के पास कामठी में कैंटोनमेंट है, तो वहाँ जो परेड होती थी वो कंपाउंड के बाहर से देखना सुनना, और संगीत जानने वाले लोग उसका नोटेशन निकाल लेते थे। ऐसी रचनाएं सीखी। कर्नल बोगी नाम की एक रचना है, ब्रिज ऑन द रिवर क्वाय नाम का सिनेमा है, तो वो उस पर पहले वो टाइटल में विसल पर ये रचना बजती, उसकी मेलोडी। तो 8-10 बार जाके वो सिनेमा देखा है ना, कॉपी और टॉर्च लेके जाना, और वो टाइटल्स चलती है तब जितना नोटेशन निकाल सकते निकालना, पूरा निकालने के लिए 7-8 बार देखना पड़ा। ऐसा परिश्रम करके इसको डेवलप किया। लेकिन एक स्वयंसेवकों के मन में स्वाभाविक इच्छा हुई कि हमारे पास भी रण संगीत की परंपरा थी, ये तो मिलता है, युद्धों के समय में वाद्यों का नाद वगैरह उल्लेख गीता में भी है, तो एक व्यवस्थित रण संगीत अपने यहाँ होना चाहिए, लेकिन दिखता नहीं है। महफिल का संगीत है, लोगों के उत्सवों में सामूहिक संगीत है, लेकिन रण संगीत की परंपरा दिखती नहीं। तो हमारे संगीत में भी रण संगीत चाहिए। तो हमारे रागदारी के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, ऐसा एक कार्यक्रम हमारा चलता है। और इसलिए, और अब इतने वर्षों वादन करने के बाद हमको जब लगा कि अब ये और लोगों को, यानी तज्ञ लोगों को सुनाने लायक हुआ है थोड़ा बहुत, तब से हमने ये कार्यक्रम शुरू किए। 5-6 साल से, पहला नागपुर किया, बाद में पूना में किया, अभी ग्वालियर में करके आए, अब यहाँ बंगलोर में, उसके पहले भी एक हुआ था, स्वरांजलि शिविर नाम हुआ, केवल ब्रास बैंड का। लेकिन तज्ञ लोगों के सामने केवल ये पहला हो रहा बंगलोर, ठीक है। तो इसलिए एक तरह से आपको एक नई बात देखने को, सुनने को मिलेगी, और हमारे लिए उसका एक परीक्षण तज्ञ लोगों के कानों से होगा, उनकी सूचनाओं से संघ कार्य का और देश का लाभ होगा। ऐसा ये कार्यक्रम आज आयोजित है। इस दृष्टि से आप इसको देखिए, इतनी विनंती है। और संघ के बारे में या इस घोष की विधा के बारे में आपको पहले कुछ पूछ लेना है तो पूछ लीजिए। आपको हिंदी समझ में आया ना सबको? मैंने आप सुनते समय देख सकते हो। ನಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿದ್ರೂ ಕೇಳಬಹುದು, ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆ. ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ ಇದೆ, ಅವ್ರು ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ. अब स्वर निबद्ध हो तो संगीत, संगीत में अगर अपस्वर आ जाए तो भारतम के लिए कितना घाटा होगा, इसमें थोड़ा सा मतलब एक
लेकिन बिगड़ता ही है ना, मेल बिगड़ता है, अपस्वर आ जाए तो स्वरों के संवाद में जब गलत स्वर लग गया तो पूरा ही रसभंग हो जाता है, और उसका संबंध मन से है तो मन अव्यवस्थित हो जाता है, और अव्यवस्थित चित्तानाम प्रसादों की भयंकर ऐसा कहा गया। आपका भी अनुभव है ही है, क्योंकि आप तो थे ही करिए, लेकिन ये संघ का काम करने की आदत ऐसी थी कि मेरी फाइनल ईयर में था, तब मेरी पढ़ाई हो नहीं थी। तो फाइनल ईयर की परीक्षा में मैंने हर विषय का एक दिन अभ्यास किया है साल में। परीक्षा के पहले दिन वो अल्टरनेट डे पेपर्स रहते थे, एक दिन खाली मिल जाता था। तो मैं जहाँ काम करता था संघ का, वो इलाका छोड़कर हॉस्टल पे रहने के लिए आ गया। तो एक दिन पढ़ना और दूसरे दिन परीक्षा के लिए जाना। तो सुबह उठने के बाद बड़ी चिंता हो जाती थी कि अब क्या होगा, पढ़ाई तो एक ही दिन की है, लेकिन क्या होगा, टेंशन बहुत आता। तो स्नान करते समय मैं नाट्य गीत वगैरह गाता था, थोड़ा सा संगीत शास्त्र आता है, लेकिन वो एक स्नान करते समय 15 मिनट आधा घंटा मुक्त कंठ से वो गाता था तो सारा टेंशन। ये स्वरों का सामर्थ्य है, ये तो पक्का है, और राग चिकित्सा भी होती, इतना उसका सामर्थ्य है। तो स्वर सुसंबद्ध संगीत का इतना बड़ा सामर्थ्य है, तो बेसुर संगीत के कारण हानि भी वैसी हो सकती है। स्वास्थ्य पर तो कोलाहल का परिणाम होता ही, कोलाहल आने अपस्वरों का मेल है सारा, तो बहुत कोलाहल होता है, तो कितने ही साइकोसोमैटिक डिसीजेस ये बढ़ जाते हैं या उससे निपटते भी हैं। और इसलिए स्वरों का ये तो महत्व है ही, और राष्ट्र जीवन में भी सबके स्वर संवादी रहे और विवादी स्वर न आए, ऐसा अगर राष्ट्र जीवन चले तो देश तरक्की करता है, नहीं तो एक दूसरे की टांग खींचने में ही सारा समय चला जाएगा। तो इसलिए उसका तो महत्व है ही। ये संस्कार भी उसी का है, यानी हम संगीत बजाते हैं तो कार्यक्रमों के लिए बजाते हैं, लेकिन हमको इतने वर्षों का जो अनुभव, हम गीत भी गाते हैं, यानी सांघिक या व्यक्तिगत गीत भी संघ में होता है, तो हमारा ये अनुभव है कि उसका एक सामर्थ्य है। स्वरों के साथ शब्द जब पहुंचते हैं तो वो बहुत गहरे पहुंचते हैं और तुरंत परिणामकारी होते हैं। ऐसे भी उदाहरण है कि हमारे एक प्रचारक जी कपड़े धोकर सुखाने के लिए डाल रहे थे, उस समय वो एक गीत गुनगुना रहे थे कि हे भारत माँ, हम इतने करोड़ों पुत्र तुम्हारे हैं, लेकिन क्या तुम्हारी हालत है, हमारा जीवन तो व्यर्थ है। ये सुन के एक व्यक्ति प्रचारक निकला, ये प्रत्यक्ष है, और ऐसे अनेक उदाहरण। हमारे एक प्रांत के संघ चालक जो संघ में आए, वो हमारी प्रार्थना शाखा पर चल रही थी, तो उनके पैर रुक गए रास्ते, और फिर सुनने के लिए थोड़ा पास आए। फिर उन्होंने प्रार्थना के स्वर तो सुने, उसके लिए पास है, फिर शब्द भी सुने, तो उस दिन वो संक्षेप बन गए शाखा में। और बाद में हमारे प्रांत संघ चालक बंगाल के केशव चंद्र चक्रवर्ती का। तो ये स्वरों का ये सामर्थ्य होता है। प्रार्थना में हमारे ज्यादा स्वर नहीं है, लेकिन सबने मिलके सुस्वर गाए तो उसका ये परिणाम। तो इसलिए अपस्वर का खतरा भी बहुत बड़ा है, क्योंकि स्वर का सामर्थ्य बहुत प्रचंड है। जय गंगे भागीरथी मराठी में बहुत नाती, बहुत प्रकार। उस समय वो मंदारमाला नाम का नाटक आया, उसकी ये सब जय गंगे भागीरथी तो दूसरे नाटक। तरुण पीढ़ी में और 8-10 नाटक गीत बहुत पॉपुलर थे, उसमें वो गाता था।
गाता था ना बाथरूम में जैसा गाते वैसा। पद्मश्री पुरस्कृत प्रतिभा प्रहलाद जी, नागस्वरम, ढोल, नगारा, शहनाई, such instrument to such band to bring more Indian flair. अभी वैसा प्रयोग हम कर रहे हैं। अभी चंडे तो आगे है ताल वाद्य में, तो उधर जाएंगे मंगलोर की तरफ, तो आनंद दल के साथ एक चंडे दल भी रहते हैं। नादस्वरम का भी प्रयोग किया है हमने, लेकिन अभी वो बजाने वाले हमारे तैयार नहीं हुए, लेकिन उसको ले सकते हैं, शहनाई भी ले सकते हैं, कुछ वाद्य हम जरूर ले सकते हैं भारत के, और हमारा ये प्रयोग भी चलेगा। अभी हमने अपना वेणु लिया है, वेणु पहले से था, अंग्रेजी में 5 के, लेकिन अभी जरा जगह जगह हमारे वेणु बजाने वाले वेणु दल के संसद खड़े, तो बाकी वाद्यों का भी प्रयोग करें। थोड़ा और हमको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। So why would it be only Rana Sangeet? Music as music cannot be promoted, or it's only... No, it is not for promotion of music, it is for samskara. So they are related to our daily exercises, कार्यक्रम. For that, of course, वो भारतीय संगीत का की रुचि, उसके लिए एक गौरव, वो हम सब, कम से कम हमारे जो घोषवादक है भारत में हजारों, उनको तो उसका अनुभव ही है, और इसलिए हमारे जो गीत होते हैं वो गीत तो अपने भारत सुरावट की ही होते हैं। संचलन गीत भी वैसे होते हैं, और व्यक्तिगत गीत भी, सांघिक गीत भी वैसे होते हैं। परंतु संगीत प्रमोशन ये एक अलग विषय है। हमारे स्वयंसेवक काम करते हैं संस्कार भारती के द्वारा, आपको अनंत जी बताएंगे बाद में उसके बारे में। लेकिन संघ में जो मनुष्य निर्माण का काम है, उसमें हर बात का एक लिमिटेड स्कोप है, और इसलिए बहुत सी बातें हमारे यहाँ, खेल भी चलते हैं, मार्शल आर्ट्स भी चलते हैं, वैसे भारतीय संगीत के आधार पर म्यूजिक भी चलता है, और भी बहुत सी बातें चलती हैं, लेकिन वो एक मर्यादा में, ताकि एक विशिष्ट प्रकार का मनुष्य तैयार हो। तो उसके लिए जितना आवश्यक उतना यहाँ करते, बाकी हर क्षेत्र में भारतीयता को आगे बढ़ाने का काम स्वयंसेवक कर रहे हैं। तो संगीत के क्षेत्र में भी Can we also where the language can also further inspire the people? yes, in each language we have so many songs, we have competitions also. Please. Yeah, thank you. तो जैसे अभी पहला शिविर, बहुत बड़ा शिविर बंगलुरु में हुआ 82, तब ये गीत आया था, यल्ला भेगा मर तू, वो ऐसे बहुत गीत है, बहुत पुराना। पहली बार हमने जो नागपुर में सुना, तृतीय वर्ष के वर्ग में, संचलन गीत सुना, ऐसा गीत, ऐसा हर भाषा में। हमारे यहाँ सांघिक गीत की प्रथा बड़ी पुरानी है, और हर नगर का होता है, हर उत्सव में होता है। जब कैंप्स होते हैं तो एक एक यूनिट का सांघिक गीत होता है, उसका कंपटीशन होता है, और इस सब का स्वर तो भारतीय रागदारी में रहता है। रागदारी जानने वाले हमको स्वर देते हैं। व्यक्तिगत गीत भी बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, भावानुरूप उसका स्वर वगैरह, सारी बातें। तो उस माध्यम से गीत गाने वाले या वाद्य बजाने वाले हमारे स्वयंसेवक को भारतीय संगीत का प्राथमिक परिचय हो जाता है। और आनंद की बात यह है कि घोषवादन करने वाले को तो और हिंदुस्तानी और कर्नाटकी दोनों का परिचय हो जाता है, क्योंकि दोनों में रचना है। तो उस रचनाओं में कौन सा राग है, तो उत्तर हिंदुस्तानी है तो आरोह अवरोह क्या है, यहाँ कर्नाटकी है तो आरोह अवरोह क्या है, ये सब पता चलता है। ये प्राथमिक परिचय हमारा हो जाता है संगीत का। सॉन्ग्स ऑल्सो वी है। श्रीयुत सुनील कुलकर्णी जी अखिल भारतीय शारीरिक शिक्षण प्रमुख है,
मूलतः नागपुर से इधर है आगे। उनका केंद्र है रायपुर। हाँ, श्री जगदीश प्रसाद जी, अखिल भारतीय सह शारीरिक शिक्षण प्रमुख, हाँ, घोष में प्रमुख है वो, और उनका केंद्र है चेन्नई, मूलतः कोटा से है। और श्री पराग जी अभ्यंकर प्रचारक है, अखिल भारतीय सेवा शिक्षण प्रमुख, सेवा प्रमुख न थे, केंद्र बेंगलुरु है। श्री अभिजीत गोखले जी संस्कार भारती का अखिल भारतीय संगठन मंत्री है। अभी ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದಿರೋ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ कर्मी जी और जगदीश जी अच्छे वादक है, कई वाद्य बजाना जानते हैं। ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸವಿನೆನಪಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ 53 ಘೋಷ್ ರಚನೆಯ ಒಂದು ಪುಸ್ತಿಕೆಯನ್ನ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಸರಸಂಘ ಚಾಲಕರು ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡುವರಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿ. ಹೌದು, ಇಲ್ಲ ಹಾಡೋರಿಲ್ಲ, ಘೋಷ್ ನುಡಿಸೋದು ಮಾತ್ರ. That was my question also. हाँ, घोष बजाते हैं, उसके साथ साथ वो गाने का साहित्य भी ऐसे बजाने वो साहित्य अपार कीर्ति गढ़ी मेरे भव्य नाट्य सिनेमा फिल्म सॉन्ग है, तो लिरिक पहले बना है, लेकिन ये हमारी रचना अधिकांश सुर ही बने हैं। बहुत कम रचनाओं पर लिरिक की रचना है, क्योंकि लिरिक्स में एक दो इतना मर्यादा नहीं रहता। हमारे गीत जो होते हैं तो उसमें संगीत को स्कोप रहता है। सारंग की है, ऐसा है, लेकिन सब में ऐसा नहीं रहता। गीतों में जरा ज्यादा स्कोप रहता है। अब ये हमारे बैंड में होता, ये वहां नहीं आता, इसलिए लिरिक्स कम है, लेकिन कर सकते, बैठाना पड़ेगा कभी तो। ಚಿತ್ರವನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ಸಿದ್ದೀವಿ ಮೊಮೆಂಟೋ ಥರ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವೀಗೇನು ಕೇಳಿದ್ವಿ ಯಾವ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾದನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸುಮಾರು 52 ರಚನೆಗಳನ್ನು ವಾದ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಶಂಕ ನಮ್ದೇನು ವಂಶಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವೇಣು, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಆ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಇಟ್ಟಿದೆ. Lakshmi. The foreign. उनको बताया मैंने म्यूजियम देखने के लिए, जिनका तीनों का परिचय था वो आएंगे। Thank you so much. वाह, Sattu. सर थोड़ा मला तो पुष्कळ सिडीज आहेत माझ्या. जी जी मोहन जी वा हो हो मिळाला, निरोप मिळाला. हां ठीक आहे. पण मला प्रवास आहे.
ठीक है सर थोड़ा साइड से घर आएंगे बैंगलोर में खाने के लिए हाँ। याद है आऊँगा जरा और अधिक रहना पड़ेगा। म्यूजियम में जाना है। हाँ कल जा रहे हैं, कल जा बता दो कल दोपहर को जा रहे हैं। वहाँ आता हूँ। ओह थैंक यू।